अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ तमाम नाम दोबारा शामिल करने कांग्रेस का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के गरीब घराने की बेटी फलकनाज अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तानी टीम में मुंतखब। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल के मादन्नापेट मौजू में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जिले सिद्दीपेट के 3 नौजवान हलाक। तेलंगाना के आईटी और सनत के वजीर के.टी. रामाराव ने हफ्ते को कैंपस में मुनक़दा एक प्रोग्राम में आरजीयू के टी बसर के तलबा को लैपटॉप्स और यूनिफॉर्म दिए। रामाराव जो वज़रा पी सबितांदर रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी और गवर्नमेंट महब बालिका समन के साथ इदारे के 5वें कॉन्वेक्शन में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स IPUC के तलबा को लैपटॉप और यूनिफॉर्म सौंपे। साल इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी के तलबा को बेहतर मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बादशाह वज़ीर ने तरक्याती कामों की पेशरफ, तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दाम और रोज़गार और आला तालीम के मौक़े की फराहमी पर इदारे के हुकाम के साथ जायज़ा इजलास बुलाया। क़ब्ल अज़ी RGU के टी वाइस चांसलर प्रोफेसर V वेंकटरमना और डायरेक्टर S सतीश कुमार ने वज़रा का इस्तक़बाल किया। साबिक़ MPS वेणुगोपालाचारी, मधूल MLA G विट्ठल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। శక్తి ఎవరికి లేదు. నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నా. టాలెంట్ ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు, ఎవరు అబ్బ సొత్తు కాదు. 100% దమ్ ఉంటే, టాలెంట్ ఉంటే, ప్రపంచంతో పోటీ పడే సత్తా సంతరించుకుంటే మిమ్మల్ని ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికి కూడా లేదు. ఈ అవకాశాలన్నీ కూడా తెలంగాణ పిల్లలు అందిపుచ్చుకోవాలనే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తాపత్రయం తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. దయచేసి దానికి తగ్గ విధంగా నైపుణ్య శిక్షణ అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోయినట్టయితే మనల్ని ఆపగలిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, I'm very glad to mention here that some of our students like Nikhil Tangallapalli from RGUKT are now being selected by companies like Amazon. లాంటి కంపెనీ RGUKT బాసరకు వచ్చి నిఖిల్ని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడమే కాకుండా యావరేజ్ పే ప్యాకేజ్ 64 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇక్కడ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తా ఉంది. అంటే ఎంతటి టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి వస్తూ ఉన్నారో దాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. ద డ్రీమ్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ టు రియలైజ్ దట్ every child from an underprivileged family who are denied many opportunities because of financial constraints, అంటే డబ్బులు లేక లేదా తల్లిదండ్రులు స్థితిమంతులు కానంత మాత్రాన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోలేని దుస్థితి తెలంగాణ పిల్లలకు ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు RGUKTలో మీరు గతంలో వచ్చినప్పుడు మేము మీ VC గారు అడిగింది 25 కోట్లు. గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారు, నేను, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తే అవి సరిపోవు, ఇంకో 2 కోట్లు అదనంగా అని చెప్పి 27 కోట్లు మంజూరు చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఉన్నత విద్య చదువుకునే పిల్లలు ఉంటానంటే వారి కోసం ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట, జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట 20 లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్య కోసం కూడా అందజేస్తున్న ప్రభుత్వం, ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అనే విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంటే టాలెంట్ ఉంటే, అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలని ఆరాటం ఉంటే మీ స్థితి లేదా మీ తల్లిదండ్రుల ఆర్థిక పరిస్థితి అడ్డం కాదు, అడ్డంకి కాబోదు అని చెప్పడానికి నేను ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను. There are many such initiatives of the government for the welfare of all the youth to make them the most preferred ones in the job market. ये शर्मिला की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। लोटस पॉइंट पर पुलिस का छापा जारी है। लोटस पॉइंट के इर्द गिर्द अष्टाना का बंदी भी जारी है। पुलिस अहलकार पार्टी कारकुनों को अंदर जाने से रोक रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। कल बोलारम पुलिस स्टेशन में पार्टी के 40 रहनुमा, बंजारा हिल्स PS में पार्टी के 7 रहनुमा, लोटस पॉइंट पार्टी ऑफिस में अना के मशरूबात की भी इजाज़त नहीं है। कमल के तालाब के इर्द गिर्द खरफों का माहौल। YA शर्मिला का कहना है कि जब तक मार्च की इजाज़त नहीं दी जाती और गिरफ्तार पार्टी लीडरों को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये शुरुआत नहीं रुकेगी।
CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने मधिरा मंडल में इंसानी हकूक़ दिन के मौके पर सरकारी स्कूल में मुनक़दा तक़रीब को मुखातिब करते हुए बताया कि तालीम के ज़रिए ही मुआशरे की तरक्की मुमकिन है, इसीलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दे। इन्होंने मज़ीद बताया कि ये बात भी नहायत ज़रूरी है कि जिस वक्त मुल्क और रियासत में कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार थी, इस वक्त हमारे दस्तूर में जो अहम तब्दीलियाँ लाई, इससे हमारे तलबा को वाकिफ़ करवाना नहायत ज़रूरी है। ख़ासकर जबरी शादी, मासूम बच्चियों की शादियाँ, चाइल्ड लेबर से आज़ादी और मुफ्त तालीम फराहम करने से मुतालिक कांग्रेस ने जो इक़दामात किए, इससे वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने तलबा से कहा कि तालीम पर तवज्जो देने के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे, क्योंकि खेलों में हिस्सा लेने से सेहत बेहतर रहती है। ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ సభ్యులు, వారి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళది రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు కూడా కావాలని కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పుండి ఉండొచ్చు, కానీ అది వారి అభిప్రాయం. కానీ తెలంగాణ ప్రజలు ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని బలంగా కోరుకొని సాధించుకున్న రాష్ట్రం ఇది. రెండు రాష్ట్రాలు ఉండాలని నమ్మితేనే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ చట్టం చేసి రెండు రాష్ట్రాలు చేయగలిగింది. भिन्नंगा ఉంది కాబట్టే कांग्रेस पार्टी आलोचना। फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ तमाम नाम दोबारा शामिल करने कांग्रेस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक रायचूर कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने ज़िले के 7 असम्बली हलकों के फहरिस्त राय दहिंदगान में बगैर किसी वजह वो इत्तला के 1,38,000 वोटर्स के नामों को हज़फ करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस सिलसिले में ज़िले कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट BV नायक की क़यादत में पार्टी लीडरों पर मुश्तमिल एक ने रायचूर ज़िले डिप्टी कमिश्नर राजशेखर नायक से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने वालों में AICC के सेक्रेटरी NS बोस, राजू देवना नायक, डॉक्टर रज़ाक उस्ताद, अब्दुल करीम, जावेदुल हक, जय अन्ना, रुद्रप्पा अंगड़ी के अलावा दीगर शामिल है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने हज़फशुदा तमाम नामों को जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में शामिल करने की मांग की। कांग्रेस लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि सरकारी हुक्काम की जानिब से हुई इन गलतियों को सुधारते हुए इस सिलसिले में जांच करवा कर तमाम अहले राय दहिंदों के नामों की दोबारा शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा वफद ने ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने में पेश आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने और नज़रसानी के लिए 8 नवंबर तक दी गई आखिरी तारीख में तोसी करने का मुतालबा किया। वहीं दूसरी जानिब से रायचूर ज़िले डिप्टी कमिश्नर राजशेखर नायक ने तकनीकी खराबी को दूर करने के अलावा दीगर मसाइल को हल करने के ताल्लुक से मुतल्लिक़ा अहदेदारों से बातचीत करने का यकीन दिलाया। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नामों को हज़फ करने का मामला सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा देखा जा रहा है। बाद समाजी कारकुनों ने फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों की हज़फ होने के मामले में बाद सियासी लीडरों का अमल व दखल होने का इल्ज़ाम लगाया है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला गुज़िश्ता 3 दिन से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहां कई अजला में रात का दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखा गया। सुबह 11 बजे तक भी हैदराबाद और कई मुकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और सुबह 8 बजे तक कहर देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने जुमा को मुतल्लिक़ किया कि ज़िले कामारेड्डी के डोंगी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़िले संगारेड्डी के नियाकुल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 6.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद के चेरा और पीला में बिलतरतीब 7 और 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रियासत के दूसरे अजला बशमूल निज़ामबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, जनसेसल्ला, कामारेड्डी, जगत्याल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, मंचिर्याल और कुमरम भीम, आसिफाबाद में हर जगह अक़ल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के गरीब घराने की बेटी फलकनाज अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तानी टीम में मुंतखब। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक़ रखने वाली वुमेन्स क्रिकेटर फलकनाज अगले माह जनूबी अफ्रीका में होने वाले ख़वातीन के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। ICC के इस टूर्नामेंट में फलकनाज को ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया में जगह मिली है। फलकनाज के क्रिकेट खेलने और इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी बिल्कुल फिल्म जैसी है। एक इंतहाई गरीब घराने की बेटी फलकनाज के वालिद एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी है। ख़ानदान की माली हालत बहुत ख़राब है। गुर्बत के बावजूद आज फलकनाज सिर्फ अपने वालिदैन और ख़ानदान का बल्कि पूरी दुनिया में शहर का नाम रोशन कर रही है। वर्ल्ड कप टाइटल मैच में टीम इंडिया की जीत ज़्यादातर फलक के कंधों पर टिकी है। नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में निज़ामाबाद के 2 ब्रदर्स वहीद मसूद सैयदा और मोहम्मद सऊद सैयद का शानदार मुजाहिरा।
नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप साल 2022 मुकाबलों में निज़ामबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दो शूटर बरादरान मिस्टर वहीद मसूद सैयद MBA और मोहम्मद सऊद सैयद साकिन अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामबाद फर्जंदान जनाब सैयद मसूद उद्दीन मुमताज़ शूटर वो NRI ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 65वें नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जिसका इनेकाद 20 नवंबर था 9 दिसंबर तिरुवनंतपुरम रियासत केरला में इनेकाद अमल में आया था। इसमें शिरकत करते अपने माहिराने निशानेबाजी के ज़रिए शानदार मुजाहरा करते रोनाल्ड शूटर टाइटल हासिल करते हुए इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल इंडियन टीम के लिए क्वालिफाई किया। मोहम्मद मसूद सैयद ने 604.3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जिसके बाद इन्हें इंटरनेशनल राइफल शूटिंग ओलंपिक्स में शिरकत का मौका हासिल हो जाएगा, जबकि इनके ब्रदर वहीद मसूद सैयद ने 600.4 पॉइंट्स हासिल करते हुए रोनाल्ड शूटर का टाइटल का अवार्ड हासिल किया। यहाँ इस बात का तज़किरा बेमहल ना होगा कि गुज़िश्ता 19-24 सितंबर 2022 में तमिलनाडु के ट्राची शहर में मुनक़िदा 13वें साउथ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में भी इन दोनों बरादरान ने बेनिशानेबाजी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए थे और अब नेशनल चैंपियनशिप में भी इन दोनों ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बड़ी इजाज़त हासिल की है। कौमी टीम के लिए मुंतखब होना और ओलंपिक में दाखिला की राह हमवार होना कोई मामूली बात नहीं है। राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से हज़ारों शूटर्स उम्मीदवार मुकाबला आराई में हिस्सा लेते हैं। इन तमाम हज़ार उम्मीदवारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद सैयद की हर गोशे से तारीफ़ की जा रही है और मुबारकबाद दी जा रही है। मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद सैयद के वालिद मोहतरम सैयद मसूद उद्दीन NRI ने अपने दो फर्जंदान में पाई जाने वाली खुद अदाद सलाहियतों की पहचान करते हुए राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए इनकी हमेशा हिम्मत अफजाई की और हर कदम पर रहनुमाई करते हुए आज इन दो लड़कों को आला तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया, जिसका सेहरा सैयद मसूद उद्दीन शूटर और हैदराबाद के माया नाज मशहूर व मारूफ सीनियर कोच जनाब अहमद अब्दुल हक खान के सर जाता है। MS के तालिब-इल्म अंसारुद्दीन का किक बॉक्सिंग कौमी चैंपियनशिप मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा, 2 गोल्ड मेडल किए हासिल। MS जूनियर कॉलेज मलकपेट के तालिब-इल्म मोहम्मद अंसारुद्दीन वल्द मोहम्मद विखारुद्दीन ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। यह मुकाबला वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खरून मोहाली में 27 से 30 नवंबर तक मुनक़िद किए गए थे। इस मुकाबले में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के 40 शुरका ने हिस्सा लिया। एस एजुकेशन अकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन ने किक बॉक्सिंग कौमी चैंपियनशिप के मुकाबलों में शानदार कामयाबी पर अंसारुद्दीन को मुबारकबाद पेश करते हुए इनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 2 गोल्ड मेडल्स के अलावा मोहम्मद अंसारुद्दीन को चैंपियनशिप ट्रॉफी और मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। MS के होनहार तालिब-इल्म मोहम्मद अंसारुद्दीन ने नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत से पहले हैदराबाद में अपने घर पर 1 माह तक कराटे की प्रैक्टिस की थी। MS जूनियर कॉलेज मलकपेट के प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अहमद और अमले ने भी मोहम्मद अंसारुद्दीन को इनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की। ज़िंदगी और अपनी ख़राब सेहत से परेशान एक शख्स ने जुमेरात की रात को शाहीगुड़े के कपड़ा में अपने घर में मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि इस शख्स की शनाख्त रवि कुमार 35 साल के तौर पर की गई है, जो एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करता था और कुछ वक्त से परेशान था। इसने अपने बेडरूम में फांसी लगा ली। कोई खुदकुश नोट नहीं मिला। कुशाईगुड़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। साल के शुरू में मियाँपुर की म्योरी कॉलोनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी खुदकुशी कर ली थी। इस शख्स की शनाख्त सुशांत चौधरी 30 साल के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक अंगोल का रहने वाला सुशांत चौधरी हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि शहर की एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। तेलंगाना के निज़ामबाद ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में ज़िले सिद्दीपेट के 3 नौजवान हलाक हो गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक यह हादसा निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर मंडल के छेपुर के कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक और एक ज़ईफ़ शख्स ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम और ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का काम भी अंजाम दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इसको किरण की मदद से हटाने में पुलिस ने मदद ली। ज़िले रंगारेड्डी के तरकायम जमाल में एक लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वैशाली नामी लड़की मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। नवीन रेड्डी नामी नौजवान इससे मोहब्बत करता था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी और नौजवान से तय कर दी थी। अन करीब शादी मुकर्रर थी। आज नवीन रेड्डी फिल्मी अंदाज में करीब 100 अफराद के साथ लड़की के घर पहुँचा। इसने लड़की को साथ ले जाने की कोशिश की, जिस पर लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों ने मज़ाहमत की। नवीन रेड्डी और इसके साथियों ने रुकावट पैदा करने वालों पर हमला करके घर के सामान को नुकसान पहुंचाया और वैशाली को अपने साथ ले गए। लड़की के मां बाप की शिकायत पर पुलिस ने नवीन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और एसीपी उमा महेश्वर राव ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में ट्रैफिक के रूल्स को 15 दिन तक ऑटो ड्राइवरों में शऊर बेदार करने के बाद चंद्रान गुट्टा बारकत सलाला के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर तलहा कसेरी ने आज फलकनुमा ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि से मुलाकात की और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरों की गुलपोशी करने के बाद उन्होंने फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रवि से गुजारिश की और कहा कि गरीब ऑटो ड्राइवरों के चालान कम किए जाएं और महकमे पुलिस का खासकर फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डब्बा निकाल। चार मीनार गिफ्ट में मिल रहा साहब, दिल में रहता मगर तुम वो पंचायत नहीं कैसे मत लीडर। चलो ये तालाबाई को लगाओ, तालाबाई को लगाओ। ओके सर। आओ ले भाई फिर से ले रहे। रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हमारे हरदिल अजीज तीनों कॉर्पोरेट्स की राष्ट्रीय निगरानी में आज हम फिर एक बार हमारे गोल्डन तेलंगाना के गोल्डन रियल डायनामिक बेस्ट सुपर नंबर 1 SHO ट्रैफिक रवि सर के पास आए, क्योंकि पिछले हफ्ता हमने साहब से बात की थी। साहब ने उन गरीब ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत ही अच्छे मुफीद मशवरे दिए थे, जिस पर आज हमारे ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन के लोगों ने उस पर मशवरों पे अमल करते हुए कई जो है पुराने गाड़ियां साहब बोले सो लेके वो लोग परमिट की गाड़ियां लेके एंट्री कर रहे हैं। और फिर साहब ने कहा कि 2-3 दिन में और एक एक्शन है, वहां भी तुम लोगों को भेजूंगा, तुम जाके वहां से भी लेके अपना परमिट चलाओ, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले। और उसी बात पर आज फिर एक बार हम हमारे हरदिल अजीज रेस्पेक्टर SHO सर के सर और हमारे ये साहब मुनव्वर साहब से मुलाकात करें। तमाम ऑटो ड्राइवर्स ने साहब दोनों साहबों का शुक्रिया अदा करें। और साहब को हमारे फिरोज भाई ये लोगों ने नागब्बास ने सबने साहब को बोला था, उस पर साहब ने कहा कि ठीक है मैं तुमको ऐसा टाइम भी दिए साहब, ऐसा नहीं कि मैं सामने बोल रहा हूँ, टाइम भी दिए और बहुत ही सहूलतें दी। क्यों? उसका उनका मकसद ये की था कि तुम लोग गरीबा है भाई, क्यों चालाना भरते, क्यों गलत काम करते, वो डिस्ट्रिक्ट का ऑटो है, खुदा ना खास्तों से कोई ड्रग ला लिया, कुछ ऐसा कर लिया तो तुम क्यों मुसीबत में आते बोल के एक जबरदस्त बेहतरीन मैसेज दिए, अच्छा मशवरा दिया, जिस पे अमल करते आज ऑटो वाले भी खुशी का इजहार करके हमारे डायनामिक सुपर नंबर 1 तेलंगाना पुलिस का फलकनुमा गोल्ड सिटी का साउथ जोन के ऑफिसर को गुलपोशी किए, जिसके लिए हम साहब का फिर एक बार शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज।
Welfare Vice President Mr. Faisal bin Said Bam साहब है, now is out of country sir, but he told him कि साहब का नहीं गए तो साहब को मुबारकबाद ही देना, थैंक यू बोलना कि गरीबों को एक अच्छा मशवरा दिया बोल के, तो उनके तरफ से भी मैं साहब को सैल्यूट लाया हूँ। साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आज ऑटो यूनियन लोगों तरफ से तला कशेरी AIMM लीडर बरकास और चंदना गुट्टा का लीडर ऑटो ड्राइवर के साथ आज पुलिस स्टेशन का के थोड़ा रिक्वेस्ट करे, वो लोकल ऑटो ड्राइवर्स का बारे में थोड़ा ऑटो सो एक्चुअली परमिट नहीं है, विदाउट परमिट गाड़ी इधर हैदराबाद फिर रहे, वो गाड़ी को हम चलान डाल रहे, जब से पहले से डाल रहे, वो भी पूरा विदाउट नो एंट्री का गाड़ी है, वो अदर डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी है। वो बारे में लीडर साहब आके आज मेरे को भी रिक्वेस्ट करा, मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करा वो बारे में क्या होता, प्रॉब्लम्स क्या है बोले तो वो हैदराबाद में का रजिस्ट्रेशन गाड़ी हैदराबाद में फिरता, मगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन वो एरिया में फिरना, वही रूल है, RTA रूल है। वो RTA रूल ऐसा पूरा हैदराबाद में फिरने विदाउट डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी हैदराबाद फिर तो दो नुकसान हो रहा। एक नुकसान क्या है, लोकल ऑटो ड्राइवर्स को पूरा नुकसान होता। फर्स्ट ऑटो ड्राइवर्स कौन है, लोकल में फिरने वाला को बाहर से आके वो लोग बाहर से गाड़ी चला रहे, एक है। दो है क्या है, पूरा RTC डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा। सो दो बारे में गवर्नमेंट वो डिसीजन ले लिए, और RTA रूल्स वही है और ट्रैफिक रूल्स भी वही है, एक ही है। और अदर डिस्ट्रिक्ट विदाउट परमिट नो एंट्री का गाड़ी इधर नहीं फिरना, वो बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पुराना ये अभी बाहर ऑटो पूरा बेच के, नहीं तो डिस्पोजल करके किसी की बेच के, वो हैदराबाद में पुराना गाड़ी ले लेके वो अच्छा बना के वो भी फिर सकते हैं। वो परमिट है, ऑफिशियली परमिट होता, इसमें कुछ भी नहीं है। वो पुराना गाड़ी भी 20 साल का पुराना गाड़ी भी चला सकते हैं इधर हैदराबाद में, ऐसा परमिट होता। बुरा कोई पूर्व आदमी आए तो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, नहीं है तो आज EMI नया गाड़ी लेके EMI बना सकते, इजी चला सकते गाड़ी, 4 नहीं 5 गाड़ी चला सकते। मगर ये इलीगल काम नको बंद करो बोल के मैं भी ये ऑटो ड्राइवर्स लोगों को, हमारा तला कशेरी लीडर AMM को मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मेरा पुलिस का बात भी अब अंडरस्टैंडिंग करके लीगल वे में फिर आते बोल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल के कमलापुर मंडल के मदनापेट मौजू में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुकामी ज़रा के मुताबिक लैलेंद्र नामी शख्स की बेटी अक्षया इस महीने की 5 तारीख को मुश्तबा हालत में फौत हो गई। लैलेंद्र को शुबा था कि इसकी बेटी की मौत की वजह 23 साला राजू है। आज सुबह इसने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर राजू पर हमला किया। इस पर खंजर से वार किया गया, जिसके नतीजे में राजू की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका में वाक़ा पर पहुँच गई। फलकनुमा लिमिट में फलकनुमा ACP शेख जहांगीर की हिदायत पर चंद्रानगुट्टा इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम की गई। चंद्रानगुट्टा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी, ASI सत्यपति सत्या ने मज़कूर अफसरान की हिदायत के मुताबिक इन तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ फलकनुमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर मोजी राम और दीगर ने हिस्सा लिया। सुधीर बाबू एडिशनल CP रचाकोंडा के तबसरे मानीगुड़ा अगवा केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमने लड़की को बचा लिया, वैशाली सदमे में है और इसे मारा पीटा गया और खौफजदा किया गया।
वैशाली बोलने के काबिल नहीं थी, हमने अगवा के 6 घंटे अंदर लड़की को बचा लिया। ये एक मनसूबाबंद अगवा था। लड़की को अगवा करने के बाद इन्होंने इसे डराया। नवीन रेड्डी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। टीमें इसे तलाश कर रही हैं। ఆమె డీప్ షాక్లో ఉంది. ఆమెను కొట్టడం లాంటిది స్ట్రెస్ లాంటిది ఉంది ఆమెకు. కాబట్టి ఆమె షీఈ్ నాట్ ఇంక్లైన్ టు స్పీక్ టు ఎనీవన్ యాజ్ ఆఫ్ నో. పేరెంట్స్ వాళ్ళతో ఉంది. మేము ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీకు ఏమున్నా సరే మీకు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అమ్మాయిని సేఫ్గా వితిన్ 6 hours టైంలో ఆల్మోస్ట్ రెస్క్యూ చేశాం. 8 మందిని అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేశాం. ఇంకా మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఇంకా ఉన్నాడు. మేము ఇంకొక అక్యూజ్ ఉన్నాడు, ఇంకా ఉన్నారు అక్యూజ్లు. వాళ్ళందరినీ కూడా तेलंगाना के गवर्नर तमिलाई सौंदरराजन ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जिसमें हैदराबाद में दिन दहाड़े 100 मर्दों के जरिए खातून को अगवा कर लिया गया। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए गवर्नर तमिलाई सौंदरराजन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और कहा कि वो इस वाक़े के बारे में जानकर हैरान रह गए और इस खातून पर तशवीश का इजहार किया है। इसने रियासती डीजीपी को मुतासरा के ख़ानदान और लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया। इन्होंने ट्वीट किया कि वाक़ा देखकर सदमा हुआ। अगवा की गई खातून की हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद इसके अहल खाना को यकीन दिलाया कि मुजरिमों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना डीजीपी से दरख्वास्त करें कि ख़ानदान और लड़की की हिफाजत के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की तालीम हासिल करने वाली 24 साल खातून वैशाली के बेईमाना अगवा ने शहर में तहलका मचा दिया था और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 6 घंटे के अंदर खातून को बाजियाब करा लिया था। मालूम हुआ है कि मरकज़ी मुलजिम नवीन रेड्डी ने 100 मसले हुजूमों के साथ अदलिया में मुतासरा की रिहाइशगाह पर इसकी मंगनी के दिन हंगामा किया और इसे अगवा कर लिया। तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का रियासती सतह का इजलास। इन्होंने कहा कि अक़लियती मुलाज़िमीन की हालत काबिल रहम है और हुकूमत से इन्हें मकानात देने की अपील की है। ज़ेर-ए-इल्तिवा DA फौरी बंद किया जाए। ఈరోజు తెలంగాణ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ సర్వీస్ అసోసియేషన్ టీఎస్ మేసా స్టేట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము. ఈ మీటింగ్లో ముఖ్యంగా మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి మేము కొన్ని డిమాండ్స్ను మేము రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకున్నాము. అందులో భాగంగానే మా అసోసియేషన్కు రికగ్నైజ్ గురించి మేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము ఫైట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే 33 జిల్లాలలో మా ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి ఉంది. ఇందులో ఎంప్లాయీస్ కాకుండా టీచర్స్ కూడా సభ్యులు ఉన్నారు. కావున ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ మైనార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నందున దయచేసి ప్రభుత్వము దీనికి రికగ్నైజ్ చేయాలని చెప్పేసి మొట్టమొదటి విషయం మాది. రెండో విషయానికి వస్తే 20,000 మంది ఉద్యోగులు టీచర్లు ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా ఇంటి స్థలాలు లేవు. అతి కష్టంగా వాళ్ళు రెంట్ హౌస్లలో గడుపుతున్నారు. కావున ప్రభుత్వము మైనార్టీలకు దృష్టిలో పెట్టుకుని మాకు ఆల్రెడీ మా హౌసింగ్ సొసైటీ ఉంది, మేసా హౌసింగ్ సొసైటీ ఉంది. దానికి సభ్యులు ఒక 1000 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం వాళ్లకు ల్యాండ్ అలాట్ చేయాలని చెప్పేసి రెండో డిమాండ్ ఉంది మాది. అదే కాకుండా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లతో మేము ఆల్రెడీ తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో చేసిన కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లకు ఓడి ఇచ్చారు. ఆ ప్రభుత్వం మాకు కూడా ఓడి మా అసోసియేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మా మూడో డిమాండ్. అది కాకుండా ఇప్పుడు ప్రతి డిఏ ఏదైతే పెండింగ్ డిఏ ఉందో ఆ పెండింగ్ డిఏ కూడా మాకు क्लियर చేయాలని చెప్పేసి वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लीडर कोमू शुभा ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक है कि तेलंगाना हुकूमत जमहूरियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के तौर पर तमाम इजाज़तें लेकर शर्मिला के मार्च को रोक रही है। हमले का मतलब KCR की आमराना हुकूमत है। हमने कहीं भी अमन व अमान को ख़राब नहीं किया, किसी MLA के घर का मुहासिरा नहीं किया। हम सब जो शर्मिला के साथ है वो तेलंगाना के बच्चे हैं और हमने तेलंगाना की आमद के साथ खलक़ का किरदार अदा किया है। ये अजीब बात है कि हम हर कदम पर तौहीन का सामना करना पड़ता है। స్వామ్యబద్ధంగా శాంతియుతంగా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అడిగి షర్మిలక్క గారు పాదయాత్ర చేస్తుండ్రు. 223 రోజులు గడిచినాయి. సుమారు 80 నియోజకవర్గాలు దాటినాం. ఎక్కడ కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి మేము ఎక్కడ కూడా ఆటంకం కలిగించలేదు. అదేవిధంగా ఏ ఎమ్మెల్యేను కూడా పర్సనల్ గా మేము మా వాళ్ళు గానీ మా కార్యకర్తలు గానీ ఎవరిని కూడా మేము అటాక్ చేయలేదు. ఎవరికి కూడా మా వల్ల శాంతి భద్రతలు గానీ ఎక్కడ గానీ ఎటువంటి అగాధం కలిగించలేదు. మేము చేసిందల్లా ఒకటే ఏంటిది,
తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉద్యమ సమయంలో ఏవైతే హామీలు ఇచ్చిర్రో కేసీఆర్ గారు అవి ఎంతవరకు నెరవేర్చారు, ఎంతవరకు నెరవేర్చారనే విషయం మేము మాట్లాడుతున్నాం స్పష్టంగా. అదే కాకుండా మేము పాదయాత్ర చేస్తున్న క్రమంలో ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఆ ఎమ్మెల్యే మరి ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఏం చెప్పాడు, ఎలక్షన్ లో ఏం చెప్పారు, ఇప్పుడు ఎంతవరకు చేశారనే విషయం మేము మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పడం మా బాధ్యత కాబట్టి ప్రజలకు మేము చెప్తున్నాం. దీనికోసం అని చెప్పేసి అక్రమంగా నిర్బంధించి ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యమా లేకపోతే ఇది ఒక తాలిబాన్ దేశమా? అసలు మాకు హక్కు లేదా ఇక్కడ మాట్లాడడానికి? షర్మిలక్క గారిని ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? మమ్మల్ని 4 దిక్కుట్ల అక్కడ లోటస్ పాండ్కి పోయే పార్టీ కార్యాలయానికి 4 దిక్కుల అష్ట దిగ్బంధనం చేసి మా కార్యకర్తలందరినీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికించుకోవడం, విపరీతంగా కొట్టడం, ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదా? మేము తెలంగాణ ప్రజలం కాదా? మేము షర్మిలక్క వాళ్ళ వెనకాల నిలబడ్డాలంతా తెలంగాణ ప్రజలమే కదా. మేమంతా మీరు సరిగ్గా మీ యొక్క పాలన సరిగ్గా లేదనే కదా మేము ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నది. మరి అలాంటప్పుడు మీరెందుకు దాడులు చేయడం? ఇది నిజంగా కేసీఆర్ గారి నియంత్రణ. MDTSRTC सजना ने कहा है कि फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत ही मौसर मीडिया है और ऐसे बहुत सी मिसालें हैं जहां मुआशरा तस्वीरों और तस्वीरों से मुतासिर होता है। VC सजना ने माडापुर स्टेट आर्ट गैलरी में इंडियन और फोटोग्राफी फेस्टिवल हैदराबाद ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। TSRTC और इंडियन फ़ोटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका तौर पर पहियों वाली गाड़ियों पर फ़ोटोग्राफ़ी दौरा किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में ये पहला मौका है कि फ़ोटोग्राफ़ी लोगों तक पहुँचाने की एक इख्तराई कोशिश है। सजना ने कहा कि लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी की अहमियत से आगाह करने का ये एक अच्छा मौका है। इस बस को नुमाइश के लिए रखा गया है। इस तस्वीर नुमाइश में हैदराबाद की सकाफ़त और लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। इसे हैदराबाद में कई मुकामात पर लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा। So I will now give the mic to Sajna sir after you finish taking the photos to talk about the initiative. Okay, first let the festival director Mr. Akbar Matthews address the media. Good afternoon everyone. मूसलाधार बारिश की वजह से तमिलनाडु में ज़्यादातर जगहों पर सड़कों पर दरख्त गिर गए। जीसीसी के फ्रंट लाइन कारकुन ट्रैफिक को कम करने के लिए सड़कों को साफ करने में मसरूफ़ है। ईशान किशन पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने पहले विनडे सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल दिया। ओपनर ईशान किशन ने चोट्टुग्राम बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे विनडे में तारीख रकम कर दी है। ईशान किशन अब चौथे हिंदुस्तानी बल्लेबाज है जो सिर्फ 126 गेंदों में इस मुकाम तक पहुंच गए। ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 50, 85 गेंदों पर 100 और 103 गेंदों पर 150 का स्कोर 200 तक पहुंचने के लिए बकिया गेंदों में किया। गैप मिलेगा यही खोज रहे हैं इस वक्त, कहां पे गैप ढूंढूं या हल्के हाथ से खेल के दौड़ जाऊं। जी हां, बन गया इतिहास, पूरा किया इन्होंने दोहरा शतक। अभी देखे कहां है तुमने जलवे हमारी उड़ान के, वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। क्या कमाल की पारी खेल दिखाई है यहां ईशान किशन ने और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया एक दिवसीय मैचों के इतिहास में। भारत के क्रिकेट के इतिहास में एक और पन्ना लिख दिया यहां पर ईशान किशन ने। बेहतरीन पारी खेली है, दोहरा शतक पूरा किया। 35 के बाद 295 पर 1 ईशान के। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा इजाज़त मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।